آزاد امیدوار جوہر سیف اللہ خان کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری۔ ورکر کنونشن ایک بہت بڑے جلسہ عام میں تبدیل ہو گیا، ہزاروں افراد کی شرکت۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ملک یاسین کی اس رپورٹ میں۔ سیٹ سیف اللہ خان مارکیٹ میں گوہر سیف اللہ خان کا ورکر کنونشن ایک بہت بڑے انتخابی جلسے میں تبدیل ہو گیا۔ جلسے میں جوہر سیف اللہ خان، گوہر سیف اللہ خان، امان ایڈوکیٹ سمیت دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جوہر سیف اللہ خان ہی واحد لیڈر ہیں جو کوہاٹ کے عوام کی محرومیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر قاری فتح محمد، جمعیت علماء اسلام کے امیر، صرافہ ایسوسی ایشن وکلاء ونگ نے گوہر سیف اللہ خان اور جوہر سیف اللہ خان پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ خدمت کا جذبہ ان کو اپنے باپ سے وراثت میں ملا ہے اور وہ کوہاٹ کے عوام کی محرومیاں دور کرنے کے لیے عوام کی خاطر میدان میں نکلے ہیں اور ان کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ کیمرہ مین عبدالمالک کے ساتھ ملک یاسین، TNN نیوز کوہاٹ۔ جلال پور پیروالا تھانہ سٹی کی حدود گلا منڈی میں 3 مسلح ڈکیتوں کی ڈکیتی کی واردات۔ مسلح ڈکیٹ کریانہ ہول سیل کی دکان سے 1.5 لاکھ سے زائد نقدی اور مہنگے موبائل فونز چھین کر فرار ہو گئے۔ متاثرہ تاجر طارق اقبال کا بتانا ہے کہ 3 مسلح ڈکیٹ ہونڈا 125 موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آئے اور گن پوائنٹ پر ہم سے نقدی اور موبائل چھین کر فرار ہو گئے۔ 15 کال پر پولیس آ گئی لیکن ڈکیٹ اس وقت تک جا چکے تھے۔ پولیس ملزمان کو گرفتار کر کے ہمیں انصاف فراہم کرے۔ دوسری جانب تھانہ سٹی پولیس نے موقع دیکھنے کے بعد کارروائی شروع کر دی۔ نوتعینات ایڈمنسٹریٹر الشفا آئی ٹرسٹ کرنل صفدر امیر کے احکامات پر بڑوں کے ساتھ ساتھ اسکول کے بچوں کے لیے فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ملک یاسین کی اس رپورٹ میں۔ پبلک ایجوکیشن سسٹم بائی پاس روڈ پر فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں 230 بچوں کا معائنہ کیا گیا، 30 کو اسپتال ریفر کیا گیا جبکہ ادویات اور اینکیں بھی فراہم کی گئیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر نے بتایا جناب ابھی الرجی آنسیٹ ہونے لگا ہے تو اس میں جو ہے ہمارے پاس نارمل جو آ جاتی ہیں ہارٹ کلائمیٹ ڈیزیز ہوتی ہیں تو اس میں ہمارے پاس VKC کا آنسیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو الرجی وغیرہ کامن ورڈز میں لوگ ان کو بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آگ، دھوپ، دھواں، گرد و غبار وغیرہ، جس طرح ہمارے انوائرمنٹ کی پولوشن وغیرہ، تو اس سے جو ہے نا آنکھوں کو بچانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آنکھوں کو دھوئیں، جس طرح وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے وقت 3 دفعہ ایک آنکھ کو دھوئیں، 3 دفعہ دوسری آنکھ کو دھوئیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح دھوپ وغیرہ سے، گرد و غبار وغیرہ سے جو ہے نا آنکھوں کو بچا کے رکھیں، گندے ہاتھ وغیرہ جو ہے نا آنکھوں کو نہ لگائیں۔ تو انشاءاللہ اس سے جو ہے نا جو ڈیلی ہمارا ہائیجین ہوتا ہے اس میں امپرومنٹ ہوتی ہے، تو اس سے انشاءاللہ آنکھوں میں بہتری آتی ہے۔ ساتھ میں جس طرح موبائل فوبیا کا دور ہو گیا ہے تو موبائل میں جو ہے بچوں کو زیادہ نہیں یوز کروائیں، کوشش کریں کہ کم سے کم ٹائم اس کو دیں، اور اگر ٹیلی ویژن وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ پراپر فاصلے پہ ان کو بٹھا کے جو ہے نا آپ ان کو دکھائیں، تو انشاءاللہ اس سے جو ہے نا ان کو فیوچر میں اتنے ایشوز نہیں بنیں گے۔ اسپتال کے حوالے سے PRO نے بتایا کہ تو ہمارا یہی موٹو ہے کہ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ بیسک جو پرائمری سیکشن ہوتے ہیں، جو اسکول کے بچے ہوتے ہیں، ان کو آنکھوں کی بیماری کا، آئی سائٹ کا پتہ نہیں ہوتا، تو جو اس حوالے سے جب ہم اس کو چیک اپ کرتے ہیں تو ان کی آئی سائٹ کمزور ہوتی ہے، اور عموماً ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ نالائق ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ نالائق نہیں ہوتا بلکہ ان کی آئی ویکنس ہوتی ہے، ان کو بورڈ نظر نہیں آتا۔ تو انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ بیسک بنیاد سے لے کر ان کو آئی چیک اپ کرائے، ان کے لیے اینک کا نمبر دیں، اور اگر الرجی وغیرہ ہو، کوئی اور بیماری ہو، ٹریجم ہو یا اسکوینٹ ہو، تو اسی ٹائم اس کی کور کر لیں تاکہ بچہ بڑا ہو کر آئندہ ایسی بیماری کا شکار نہ ہو۔ تو الشفا کا یہی موٹو ہے انشاءاللہ کہ ہم ہر یونین کونسل، ہر جگہ اور ہر اسکول میں جائیں گے تاکہ اس کو یہ آنکھوں کی بیماری کا تدارک ہو سکے، اور شفا اسپتال جو ایک زکوٰۃ کا اسپتال ہے، میرے مخیر ذات سے یہ اپیل ہے کہ اس اسپتال میں ہماری مالی، جانی اور مالی اور جو خیرات ہے، جو صدقات ہے، اس میں ہماری مدد کریں تاکہ اس صدقات پر، اس زکوٰۃ پر آپ کے الشفا بھی چلتا ہے اور ہماری کیمپ بھی لگتے ہیں۔ جی، الشفا آئی ٹرسٹ جہاں کوہاٹ میں بڑے، بوڑھے اور خواتین کی آنکھوں کا علاج فری کرنے میں مصروف عمل ہے، اسی طرح بچوں کے اسکولوں میں جا کر آنکھوں کا معائنہ کرنا ایک احسن اقدام ہے۔ کیمرہ مین عبدالمالک کے ساتھ ملک یاسین، TNN نیوز کوہاٹ۔ ملک
भर की तरह सादिकाबाद में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत बड़ा इजाफा कर दिया गया है। रात को सोई हुई आवाम जब सुबह पेट्रोल पंप पर आई तो पेट्रोल 22 रुपए तक और डीजल 17 रुपए फी लीटर महंगा हो चुका था। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे रईस गुलाम मुश्तबा तरहेली से। जी रईस गुलाम मुश्तबा तरहेली, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सादिकाबाद में भी सोई हुई आवाम पर हुकूमत ने महंगाई का बम गिराते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं बढ़ा दी हैं। पेट्रोल की कीमत इस वक्त 22 रुपए के करीब बढ़ गई है और डीजल की कीमत जो है 17 रुपए बढ़ गई है। मजीद हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। मेहरबानी करें सर, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि हमारी समझ में नहीं आ रहा। सवारी इतना किराया दे नहीं रही, रिक्शे में सवारी देखें कितनी है, एक आधी सवारी मिलती है, गुजारा हो भी नहीं रहा। मेहरबानी करें, कुछ तावन करें। ये देख लें कि आप पेट्रोल कितना महंगा हो गया। 10-15 दिनों में इतना पेट्रोल बढ़ जाए, कहाँ जाए हम मजदूर आदमी, हमारा तो कुछ बन भी नहीं रहा। मेहरबानी करें आप। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो रही है, जबकि पाकिस्तान में ए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, जिसे आम शहरी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपनी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पुरानी कीमतों पर बहाल करने का मुतालबा कर दिया है। जी जाफराबाद में भी पाकिस्तान पैरामेडिकल एसोसिएशन के कौमी दिन के मौका पर एहतजाजी रैली निकाली गई और हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के आलमी दिन के मौका पर जाफराबाद में पैरामेडिकल मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने एहतजाजी रैली निकाल कर हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इस मौका पर पैरामेडिकल एसोसिएशन जाफराबाद के सदर मोहम्मद कासिम जमाली और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत मुलाजमीन के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। महंगाई अरूज तक पहुंच गई और पैरा मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जा रहा। पैरामेडिकल मुजाहिरीन ने हुकामे वाला से मुतालबा किया है कि पैरामेडिकल स्टाफ के तमाम जायज मुतालबात पर अमल दरामद करके महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। बसूरत दीगर सख्त लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया और अहले ननकाना के मुखय्यर हजरात के ताउन से तुर्किया और शाम के ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदादी सामान की पहली कैब रवाना कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मियां रफीक एहसन, ADCR मुजम्मिल इलियास, ADCG मोहम्मद हनीफ और दीगर ज़िला अफसरान की मौजूदगी में 750 कंबलों पर मुश्तमिल इमदादी सामान की पहली कैब रवाना की गई। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। आफत ज़दा भाइयों की इमदाद और ताउन किसी तूर इबादत से कम नहीं। डिप्टी कमिश्नर ने ताउन करने पर शहर ननकाना के मुखय्यर हजरात का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने मजीद कहा कि जल्द इमदादी सामान की दूसरी कैब भी भिजवाई जाएगी। ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए मजीद ज़रूरत तलब अशिया का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में 22 रुपए 20 पैसे के इजाफे के बाद आज मानावाला में 274 रुपए 40 पैसे में फरोख्त हो रहा है। मानावाला के पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल को फराहम करना शुरू कर दिया है, लेकिन आम शहरी पर ये कीमतें पेट्रोल बम बनकर गिरी हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मानावाला से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अदनान सुहेल। जी अदनान सुहेल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि रात के हुकूमत के वक्त ने पेट्रोलियम मसनूआत में होश और बा इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से आम तबका पिस के रह गया है। पहले ही लोगों महंगाई की चक्की में पिस रहे थे, लेकिन जो हुकूमत वक्त में रात के गए पेट्रोलियम की कीमतों में होश और बा इजाफा कर दिया है, जिसमें पेट्रोल 22 रुपये 20 पैसे और डीजल जो है 17 रुपये 20 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। इसकी वजह से आम आवाम की चीखें निकाल कर रख दी गई हैं। आपको मज़ीद ये भी बताता चलूँगा, अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो तमाम अशिया खुर्दोनोश और ज़िंदगी की ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया में इसका असर पड़ता है, जिसकी वजह से तमाम अशिया जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो महंगी हो जाती हैं। पहले ही अवाम जो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है, लेकिन ये जो हुकूमत आई थी इन्होंने बुलंदोबाद दावे किए थे कि हम आवाम को रिलीफ देंगे और जो महंगाई है उसको कम करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा। आम आवाम है जो उसको रिलीफ देने की बजाय उस पर बोझ इतना ही डाल दिया गया है जिससे वो 2 वक्त की रोटी क्या खुदकुशियाँ करने पर मजबूर है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है, खुदारा ये जो पेट्रोलियम की कीमतों में आए रोज़ इजाफा कर दिया जाता है, इसको फिलफौर वापस लिया जाए ताकि हम 2 वक्त की रोटी बआसानी कमा सकें और सुख का सांस ले सकें। जी
कश्मीर जिला भर में बढ़ती हुई बदअमनी, अगवा और चोरी की वारदातों के खिलाफ अवामी वर्कर्स पार्टी की एहतजाजी रैलियों मुजाहिरीन ने अब्दुल हमीद खोसो, फकीर जमान दाई और दीगर की सरबराही में रैली निकाली। रैली के शुरा ने बैनर्स और पार्टी के झंडे उठा रखे थे। मुजाहिरीन की अमन की बहाली के लिए शदीद नारेबाजी। रैली शहर के मुख्तलिफ रस्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची। मुकर्रिरीन का कहना था कि कश्मीर जिला बदअमनी की वजह से मुल्क भर में बदनाम हो गया है। कश्मीर जिला भर में आए रोज अगवा हो जाते हैं। कश्मीर से ही खोसा बरादरी से ताल्लुक रखने वाली खातूनों बच्ची को डाकू दिन दिहाड़े असलहा के जोर पर उठा कर ले जाते हैं। कश्मीर पुलिस मुकम्मल तौर पर खामोश है। उनका मजीद कहना था कि कश्मीर की आवाम को नए आने वाले SSP इरफान सोमो से काफी उम्मीदें वाबस्ता थी कि अमन की बहाली के लिए बेहतरीन इकदाम उठाएंगे। उन्होंने भी मायूस किया है। उन्होंने मुतालबा किया कि हमें नए या पुराने चेहरे की नहीं, अमन की जरूरत है। कश्मीर जिला भर में अमन बहाल किया जाए। करोड़ लाल एसन में असिस्टेंट कमिश्नर असद अली का गैर कानूनी तेल की सप्लाई के पेश नजर तेल के गोदाम पर छापा। गोदाम में तेल के 3 टैंकर मौजूद थे। एसी करोड़ ने तेल के टैंकर्स और इनवाइस लिस्ट को चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने तेल गोदाम पर छापे के बाद तेल गोदाम को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि गोदाम मालिकान की पेश करदा इनवाइस गाड़ियों के साथ मैच नहीं कर रही, जिसकी वजह से तेल गोदाम को सील कर दिया है और मजीद कानूनी कार्रवाई और तहकीक भी की जा रही है। सिबी का 3 रोज़ा सालाना तबलीगी इज्तिमा आज से शुरू हो गया। तबलीगी इज्तिमा में मुल्क भर से फर्जंदाने इस्लाम की आमद का सिलसिला जारी। लाखों की तादाद में फर्जंदाने इस्लाम सिबे इज्तिमा गाह पहुँच गए। इज्तिमा गाह की सिक्योरिटी भी फुल प्रूफ की गई है। पुलिस लिविज बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की भारी नफरी इज्तिमा गाह के एतराफ में तैनात किए गए हैं, जबकि म्यूनसिपल कमेटी सिबी की जानिब से फायर ब्रिगेड के अमले को तैनात किया गया है। जिला इंतजामिया की जानिब से आर्जी अस्पताल भी बनाया गया है, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से सिविल अस्पताल के तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख करके किसी नाखुशगवार वाकया की सूरत में अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर में दफा 144 नाफज की गई है। तबलीगी इज्तिमा की इख्तितामी दुआ 19 फरवरी को होगी।